Well, isn't this true? We invest so much energy into the big picture. But you know what creates that big picture? The small little details. In the next few minutes, every employee at the Home First Finance Company will master the art of building rapport with the customer, right at the first meeting. Big little things are divided in 3 parts. First, before meeting the customer. Second, during the customer meet. And third, after meeting the customer. So, let's begin with the first part of this movie. What you need to do before the customer walks into the branch. The moment the case is finally approved on Salesforce, call the customer to fix an appointment with him. Your customer will feel special and give him the ego boost. When you ask for an appointment with him, do tell the customer to carry all original documents when he arrives. हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर नम्रता बात कर रही हूँ होम फर्स्ट फाइनेंस से। सर आपका जो लोन सैंक्शन हुआ है उसके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना था। कल आप आ सकते हैं सर 10 o'clock? ओके सर। सर आप डॉक्यूमेंट्स लिख लीजिए जो हमें ज़रूरी रहेंगे आप जब भी आओगे तभी। आपका ओरिजिनल पैन कार्ड आईडी प्रूफ के लिए, आपका एड्रेस प्रूफ जो आपने दिखाया है वेरिफिकेशन के टाइम पे, आपके बैंक स्टेटमेंट्स और हमें 7 चेक ज़रूरी रहेंगे। उसमें से एक कैंसिल चेक हम ECS के लिए यूज़ करेंगे और बाकी के हम चेक सिक्योरिटी के तौर पे रखते हैं हमारे पास। यस सर। ओके, थैंक यू सर। Read all the information on Salesforce about the customer. Also, by going through the opportunity page, you will get the psychological advantage of knowing him before he arrives. Sanction letter, 2 copies. Loan schedule, 2 copies. MITC, 2 system generated copies and 2 copies in regional languages. Promissory note, 1 copy to be affixed only in company copy. ECS, 2. Stamp papers and franking has to be done as per the rules of the state in which the loan is booked. The process is slightly different for different states. Please check before you get this done for the company booklets. Keep all the documents ready before the customer arrives at the branch so that he doesn't have to wait, and if any errors, it can be rectified. Once the customer is there at the branch, follow these steps to create a service wow. The sequence to be followed is KYC check, disbursal details, pre-EMI calculations, part payment, auto prepay, insurance, signing and MOE formalities, ECS, checks and welcome kit. We have a customer here with us. Let's start with greeting the customer nicely. हाय सर, गुड मॉर्निंग। Hi. वेलकम टू HFFC। आप पानी लेना चाहेंगे? No, thank you. Check his KYC documents. The picture in the ID proof should match with the customer visiting the branch. His address proof should match with the address mentioned on the application form. Once verification is done, request the customer to attest the photocopies. After the customer attests the photocopies, the CSO has to fix the original seal and verified stamp on the photocopies and sign below the stamp. सर आपके KYC डॉक्यूमेंट्स हमें चेक करने हैं। आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो हमने आपको बताए थे वो आप लेके आए हैं तो दिखा दीजिए ताकि मैं चेक कर सकूं। Sure, ma'am. सर ये आपका सैंक्शन लेटर है, आप इस पे गो थ्रू कर लीजिए, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है। सर मैं आपको अभी डिसबर्सल्स के बारे में बताऊंगी, जिसका मतलब ये होता है कि जब भी बिल्डर से हमें डिमांड आती है, हम कंस्ट्रक्शन लेवल चेक करते हैं, उसके बाद हम डिसबर्स करते हैं वो पैसे बिल्डर को। तो हमारा जो RM है वो जाता है और पूरा चेकिंग करके आता है कि कितने लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन हुआ है
उसके बाद आपको कॉल आता है और फिर हम वो आपके कंसेंट पे डिसबर्सल करते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा बिल्डर की क्या डिमांड है? अगर आपको डिमांड लेटर आता है तो आपको हमें भेजना है। इन केस अगर नहीं आया तो हमारे ओर से आपको कॉल आएगा, जो मैंने आपको पहले बताया था कंसेंट के लिए। तो उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या क्या डिमांड है। अभी मैं आपको प्रीएमआई इंटरेस्ट के बारे में बताती हूँ। जो प्रीएमआई कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर सपोजिंग बिल्डर ने डिमांड किया है 2 लाख रुपीस, तो वो जो डिसबर्स हम करते हैं उसके ऊपर जितने दिन के लिए इंटरेस्ट देना है आपको, वो सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट रहता है। आपका ईएमआई स्टार्ट होता है पोजेशन के बाद, उससे पहले जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन रहेगा 2 लाख इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू योर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 365 डेज से वो डिवाइड होता है। अब जब भी वो इंटरेस्ट आ जाता है वो आपको हर महीने की 4 तारीख को पे करना है। इन केस अगर आपने पेमेंट नहीं होता है 4 तारीख को तो 562 रुपीज बाउंस चार्जेस है और आपका सिबिल स्कोर भी इफेक्ट होगा वो। मेरा प्री ईएमआई इंटरेस्ट कब तक मुझको लगेगा और मेरी ईएमआई कब स्टार्ट होगी फिर? सर आपका जो प्री ईएमआई इंटरेस्ट है वो आपका जब तक पूरा अमाउंट डिसबर्स नहीं हो जाता है बिल्डर को तब तक आपको भरना है, और उसके बाद आपका ईएमआई स्टार्ट होगा पोजेशन के बाद। सर अभी मैं आपको आपके पार्ट पेमेंट्स के बारे में बताती हूँ, जिसमें आप आपका ईएमआई या टेन्योर कोई भी रिडक्शन कर सकते हो। ये पार्ट पेमेंट्स में कोई चार्जेस नहीं होते और आप कोई भी टाइम पे और कोई भी अमाउंट का पार्ट पेमेंट कर सकते हो। मैं ये पार्ट पेमेंट प्री ईएमआई स्टेज पे भी कर सकता हूँ? सर आप कभी भी वो आराम से पे कर सकते हो और आपको जितना भी अमाउंट देना है उसका आपको चेक या एनईएफटी के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। सर अभी मैं आपको ऑटो प्रीपे के बारे में बताती हूँ, जो HFFC खुद ने डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट है जिसमें कोई भी चार्जेस नहीं है और आप हर महीने 1000 रुपए पे करके भी आपका 63 EMIs आप सेव कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ। सर आपका जो EMI है वो हर महीने की 4 तारीख को जाता है और आपका जो ऑटो प्रीपे है वो हर महीने की 15 तारीख को जाएगा और जो डायरेक्टली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। आपके ECS थ्रू वो हम डेबिट करेंगे आपके अकाउंट से। सर जो भी आपका EMI चालू होगा तभी ऑटो प्रीपे स्टार्ट होता है और इससे आपका लोन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये बहुत बेनिफिशियल है, कस्टमर के लिए है। सर अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको हम बताने जा रहे हैं जो कि है इंश्योरेंस, जिसके साथ 2 टाइप है हमारी 2 कंपनी के साथ। एक HDFC ORGO है और एक है भारती एक्सा। इसमें आपका पूरा लोन अमाउंट भी सिक्योर होता है और आपकी फैमिली भी सिक्योर हो सकती है। इसके 2 तरीके हैं, आइदर आप चेक से पे कर सकते हो पूरा प्रीमियम अमाउंट या तो फिर आप लोन में इंक्लूड कर सकते हो। इनकेस आप अगर आपके लोन में ऐड करवा देते हो तो हर महीने आपके प्री EMI और EMI के साथ एक पर्टिकुलर अमाउंट है वो ऐड होके आता है। इससे मेरा क्या फायदा होगा ये आप बताओ जरा मुझको। सर इससे फायदा ये होता है, इनकेस अगर आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली पूरी प्रोटेक्टेड रहेगी। जो भी लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी हमें पे कर देगी और बाकी का जो भी पैसा बचेगा वो आपकी फैमिली को जाता है। सर जो भी सारी डिटेल्स बतानी थी वो सारी मैंने आपको बता दी है। अभी आपको डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे। ये कस्टमर कॉपी है जो आपके पास रहेगा, दूसरी जो कॉपी है वो हमारे पास रहेगी। इसके साथ एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि मॉर्गेज फॉर्मेलिटीज़ है। ये तभी होती है जब भी आपके प्रॉपर्टी पेपर्स रजिस्टर्ड होते हैं और वो हमारे पास आते हैं बिल्डर से, या तो अगर आपके पास आते हैं तो आपको हमें देने रहते हैं। उसकी सर्टन फ़ी रहती है जो हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग रहती है। आप साइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं सर। मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये आपकी कंपनी में ही रहेंगे? हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रहते हैं और वो एक सेफ्टी वोल्ट में रहते हैं। जैसे आपके प्रॉपर्टी पेपर्स है, आपकी ओरिजिनल रिसीप्ट्स है, सारी हमारे पास रहेगी जब तक आपका लोन पूरा खत्म नहीं हो जाता है। ये मेरे सारे EMI जो है वो आप कैसे कलेक्ट करेंगे? सर ECS फॉर्म हम लेते हैं जिस पे आपकी सिग्नेचर्स अभी मैं लूँगी
और वो हम भेजेंगे और उससे आपका हर महीने के 4 तारीख को डिडक्शन होगा आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट से। जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम होता है उसको ECS बोला जाता है। लेकिन आप 7 चेक क्यों ले रहे हो? सर आपका 7 चेक इसलिए लिया जाता है बिकॉज 6 हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखते हैं और एक कैंसिल चेक जो है वो आपके ECS के साथ अटैच होगा। ओके। सर ये वेलकम किट है। थैंक यू वेरी मच, आपने Thank you, मुझको sir. अच्छे से समझाया। आप अभी एक टेस्टिमोनियल लिख दीजिए कि हमारी सर्विसेज आपको कैसी लगी। बाकी डिटेल्स आपकी जो टॉपअप लोन है या LTV एनहांसमेंट है जो हम दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी वेलकम किट में है सर। थैंक यू फॉर बीइंग अ कस्टमर सर। The motto of Big Little Things is to see a Home First Finance Company customer leave with a smile and to ensure he keeps smiling. You have to follow the given steps to complete the loan counseling process. Create service page on Salesforce with all the necessary details. Upload necessary documents for disbursal and insurance on Salesforce. Vault the documents that you have received by the builder and customers. Do watch this video again and again till you have captured all the little details to see the bigger picture.